শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ নাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। নবম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 19 থেকে আরম্ভ করব। चैतन्य चरितामृतम आदि 9.19 ऑनवर्ड्स। 18 नंबर श्लोक में कल आया था। এভাবেই চৈতন্যর বৃক্ষের শাখাগুলি একটি মণ্ডলী তৈরি করলো এবং তার মহামহা শাখাগুলি মহামহা सबका सबने जो मेन मेन ब्रांचेस है সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছেয়ে গেল। ওই এক ঐক শাখাতে উপশাখা শত শত, এক এক শাখাতে উপশাখা শত শত, যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত, যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত। এক একটি শাখা থেকে শত শত উপশাখা জন্মায়। এভাবেই যে কত শাখা হলো তা কেউ গুণে শেষ করতে পারে না। सोचिए, अगर हम अभी नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु को सेवा दिया कि प्रभु जी डेडलाइन है 7 दिन, 7 दिन में बताइए कि प्रभुपाद का इस्कॉन का कहाँ कहाँ शाखा और प्रशाखा निकला, उपशाखा कर पाएंगे 7 दिन में? मैंने प्रभुपाद जिसे शुरू करके जितना भक्त बना, उन लोग जो भक्त बनाया, उन लोग जो भक्त बनाए, उन लोग जो भक्त बनाए, बहुत बड़ा टास्क। तो वैसे ही महाप्रभु से, महाप्रभु वृक्ष से जो जो शाखाएं निकला है वही क्यों ता क्यों शेष गुणे शेष करते पारे ना, है ना? कोई ये सेवा लेना चाहेंगे? सब चुपचाप। मुख्य मुख्य शाखा गणेर नाम अगणन, মুখ্য মুখ্য শাখা গণের নাম অগণন। आगे तो करिब शुनो वृक्षेर वर्णन, আগে তো করিব শুনো বৃক্ষের বর্ণন। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, আমি মুখ্য মুখ্য অগণিত আনকাউন্টেবল শাখার নাম বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। দয়া করে এখন চৈতন্য বৃক্ষের বর্ণনা শ্রবণ করুন। বৃক্ষের উপর শাখা হইল 2 স্কন্ধ, বৃক্ষের উপর শাখা হইল 2 স্কন্ধ, এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ। এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ। वृक्षेर ऊपर ऊपरेर स्कंध, ऊपर वाला जो पोर्शन है वृक्ष का, থেকে দুইটি শাখা হলো। তার একটি হলেন শ্রী অদ্বৈত প্রভু এবং অপরটি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু। क्लियर है? क्लियर है? यस प्रभु जी, यस समझ में आ रहा है। সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল, সেই 2 স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল, তার উপশাখা গণে জগৎ ছাইল। তার উপশাখা গণে জগৎ ছাইল। বড় শাখা উপশাখা তারও উপশাখা, বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা, যত উপজিল তার কে করিবে লেখা। যত উপজিল তার কে করিবে লেখা। শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ, শিষ্য উপশিষ্য আর উপশিষ্যগণ, জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন। জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন। উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে, উড়ুম্ব বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে, ওই মত ভক্তি বৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে। এই মত ভক্তি বৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে। এই দুইটি স্কন্ধ থেকে বহু শাখা ও উপশাখা সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেললো। এর শাখা উপশাখা এবং তার উপশাখা এত অসংখ্য হলো যে কারোর পক্ষে তার লেখা সম্ভব নয়। এভাবে শিষ্য প্রশিষ্য ও উপশিষ্য জগৎ ছেয়ে গেল এবং কত যে তার সংখ্যা হলো তা গণনা করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। একটি বৃহৎ ডুমুর বৃক্ষের, উড়ুম্বর লিখা না, উড়ুম্বর বৃক্ষ, ডুমুর বৃক্ষের সর্ব অঙ্গে
যেমন ফল ধরে, তেমনি ভক্তি বৃক্ষে সর্ব अंगेও फल धरे। हरि बोल। डुमुर 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 को हिंदी में क्या बोलता है? अंजीर अंजीर इंग्लिश में फिग ट्री फिग तो अंजीर हो गया। प्रभु प्रभु गुल्लड़ गुल्लड़ जो गोल गोल ग्रीन ग्रीन जगह लगा रहता है पेड़ में, छोटा छोटा गोड़ गोड़, उसी को गुल्लड़ को, उसी को डूमर बंगाली लोग बोलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सब्जी। लेकिन फिग और ये अंजीर, अंजीर तो अलग चीज हो गया। हालांकि अंजीर इंग्लिश में फिग लिखा हुआ, फिग ट्री। हाँ, वो अंजीर तो गोल गोल होता है, अगर आप कच्चा अंजीर देखा तो फल जो होता है। लेकिन आई डोंट नो, उसी को डूमर बोलते हैं प्रभु, गुल्लड़ को। वो तो छोटा छोटा होता है, सब्जी बनता है अच्छा बंगाल में। अच्छा, ना बड़ा साइज है, उसको फिर जो पाक जाता है उसको चाप चाप के फिर उसको रिंग बना के बिक्री होता है। ओके। তো একটি বৃহৎ ডুমুর বৃক্ষের সঙ্গে সর্ব অঙ্গ যেমন ফল ধরে, তো ডুমুর বৃক্ষ हम देखा नहीं, एक्चुअली याद होगा, देखा होंगे, तो उसमें पूरा प्रभु सारा पूरे अंग में, उसके पूरे अंग में ही होता है वो पौधा, वो फल होता है, उसी को डूमर बोलते हैं। हाँ, वो उसमें क्या होता है, पूरे जड़, जब जड़ में भी डाल में भी सब जगह फल लगता है। हाँ, तो তেমনি ভক্তি বৃক্ষের সর্ব অঙ্গেও ফল ধরে। हरि बोल। फल धरे माने प्रचार होता है, नया भक्त बनता है, वही है फल। तात्पर्य, এই ভক্তি বৃক্ষ জড় জগতের বস্তু নয়। এই বৃক্ষ বর্ধিত হয় চিৎ জগতে, যেখানে দেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের কোনো পার্থক্য নেই। এটি অনেকটা মিছরির বৃক্ষের মতো। মিছরির, কেননা সেই বৃক্ষের যে অঙ্গেরই आस्वादन करा होक ना केन ता सुमधुर। मिचरी का वृक्ष होता है क्या? पहली बार सुना मैंने। एनीवेज, हम तो गन्ने से बनाता है, तो जो भी हो वो कहीं भी आप उसको चीनी खाइए। देखा हुआ पर वो चीनी का वृक्ष, जो गन्ने का वृक्ष को चीनी का वृक्ष बोला गया है। हाँ, वो गन्ने का वृक्ष ही होगा। कहीं भी उसको खाइएगा तो मिठाई तो लगेगा ना। ভক্তি বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা, পাতা ও ফল রয়েছে, কিন্তু সে সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। ভগবত ভক্তির 9টি অঙ্গ রয়েছে। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চনং বন্দনাং দাস্যম সাক্ষ্যম আত্মনিবেদনম। কিন্তু সেই সবেরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। তাই শ্রবণ হোক, কীর্তন হোক, স্মরণ হোক অথবা অর্চনই হোক, সব একই ফল প্রসব করবে। কোন বিশেষ ভক্তের পক্ষে এই অঙ্গগুলির কোনটি সবচাইতে বেশি উপযুক্ত হবে তা নির্ভর করে সেই ভক্তের রুচির উপর। हरि बोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हिंदी में क्या लिखा है इसका? हरे कृष्णा प्रभु जी। अतएव चाहे कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे या पूजन करे, क्या लिखा है? मतलब प्रभु जी लास्ट वाले पढ़े, उसके कृत्यों का एक जैसा फल मिलेगा। इसमें से कोई सी विधि किसी भक्त के लिए उचित होगी या उसकी रुचि पर निर्भर करेगा। हाँ, तो कोई हो सकता है कीर्तन में बहुत स्पेशलिस्ट है तो उसी को प्राधान्य, हालांकि बाकी भी करता है। ऐसा नहीं कि जो कीर्तन करता है सिर्फ कीर्तन ही करता है, कभी अर्चन ऑल्टर में घुसा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपना रुचि के अनुसार उसी में थोड़ा ज्यादा प्राधान्य होता है। तो चैट बॉक्स में सब लिखिए तुरंत, ये नवदा भक्ति में आपको सबसे ज्यादा कौन सा चीज आकर्षण करता है? लिखिए लिखिए। श्रवणम कीर्तनम विश्वम, अवा दास्य, बड़ा चीज ले लिया, बहुत चालू है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। अच्छा, हरि बोल। कीर्ति माता लिख रहा है कीर्तन श्रवणम, अच्छा, और अर्चनम ऑल्सो, ओके। श्रवणम 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 सेवा दास, ओके। कीर्तन, वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। अर्चन भी कुछ कुछ है, देखे अभी इन लोग को ब्राह्मण दीक्षा होने से तुरंत ऑल्टर में घुसाना पड़ेगा। ओके,
মূল স্কন্ধের শাখার উপশাখাগণে মূল স্কন্ধের শাখা উপশাখা গণে লাগিলা যে প্রেম ফল অমৃতকে জিনে। লাগিলা যে প্রেম ফল অমৃতকে জিনে। যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, তাই তার শাখায় এবং উপশাখায় যে ফলল तार स्वाद अमृत থেকে मधुर। आहा, समझ में आ रहा है? क्योंकि वृक्ष बढ़िया है। हम लोग का एक बंगाली में कहावत है, বৃক্ষের ফল নাকি বৃক্ষের স্বাদ ফল, কি না বলে সুভাষ বাবু? বৃক্ষের পরিচয় ফল নাকি ফলের পরিচয় বৃক্ষ, এরকম কিছু না? ফলে না পরিচয়। হ্যাঁ, বৃক্ষ তোমার ফলে না পরিচয়। কি আগে বলুন? বৃক্ষ তোমার ফলে না পরিচয়, তোমার ফলে তোমার পরিচয়। हाँ, तो वृक्ष कैसा है वो कैसे पता चलेगा? पहले उसका फल खाइए। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ बोला जा रहा है, अभी वृक्ष कौन है? वृक्ष तो साक्षात महाप्रभु है, तो फल तो टेस्टी होगा ही ना। अभी इस्कॉन में जो जो भक्त है, एक एक तो हीरा है, इसमें कोई संदेह है क्या? क्यों हीरा है? क्योंकि जो वृक्ष से निकला है वो तो कोहिनूर है, हरी हरी वो। যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, তাই তার শাখায় এবং উপশাখায় যে ফল ফলল তার স্বাদ অমৃতের থেকেও মধুর। পাকিল যে প্রেম ফল অমৃত মধুর। পাকিল যে প্রেম ফল অমৃত মধুর। বিলায় চৈতন্য মালি নাহি লয়ে মূল। বিলায় চৈতন্য মালি নাহি লয়ে মূল। জগতে যত আছে ধন রত্নমণি। এই ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্নমণি। এক ফলের মূল্য করি তাহে নাহি গণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি। মাঙ্গে বা না মাঙ্গে কেহ পাত্র বা অপাত্র। মাঙ্গে বা না মাঙ্গে কেহ পাত্র বা অপাত্র। তার বিচার নাহি জানে দেয় মাত্র। ইহার বিচার নাহি জানে দেয় মাত্র। ফলগুলি পেকে অমৃতের থেকেও মধুর হলো। মালাকার মানে গার্ডেনার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কোনো মূল্য না নিয়ে সেগুলি বিতরণ করলেন। হরি বল। ত্রিজগতের সমস্ত ধনরত্ন মণিমাণিক্য একত্রিত করলেও তার মূল্য ভক্তি বৃক্ষের একটি অমৃত ফলের সমতুল্য হতে পারে না। কে তা চাইলো আর কে তা চাইলো না, কে তা গ্রহণের সমর্থ বা অসমর্থ, সে সমস্ত বিবেচনা না করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি বৃক্ষের ফল বিতরণ করলেন। क्लियर है? कोई चाहा नहीं चाहा। सोचिए महाप्रभु जब दक्षिण भारत में जा रहा था, इसका उदाहरण क्या होगा? कोई कोई तो चाहे नहीं, लेकिन सबको बोला। सोचिए टाइगर लोग क्या बोला था? हरिनाम दो। जब महाप्रभु झारखंड का जंगल से गुजर रहा था, बोला हमको हरिनाम दो। नहीं, टाइगर लोग तो सो रहा था, लेकिन हम लोग को मालूम है महाप्रभु कैसे उन लोग का पीठ में चापर मार गए, हरिनाम बोलो बोलो, कृष्ण बोलो, हरिनाम बोलो, ऐसे करके चापर मारा। তো কেউ চাইলো বা নাই চাইলো, আবার কেউ তা গ্রহণের সমর্থ বা অসমর্থ হলো। बहुत लोग समर्थ था, बहुत लोग असमर्थ भी था। उदाहरण असमर्थ जगह माधव तो किसी तरह नहीं बोलेगा, वो तो बोले नित्यानंद बोले कृष्णा बोला, वो तो अपना मानने के लिए आ गया, तो फिर भी दिया ना। সেই সমস্ত বিবেচনা না করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি বৃক্ষের ফল বিতরণ করলেন। এটি হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনের সারমর্ম। কে এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করতে সক্ষম আর কে সক্ষম নয়, সেই রকম কোনো বিচার নাই। তাই কোন রকম বিভেদ বা বৈষম্যের বিচার না করে এই আন্দোলন প্রচার করা উচিত। সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচারকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন রকম ভেদাভেদের অপেক্ষা না করে প্রচার করে যাওয়া। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করছেন। হরি বল। তো এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল, অনেকে বলে যে ইসকনে লোক প্রসাদ খাইয়ে ভক্ত হয়। শুনেছেন এই জিনিসটা? কিন্তু इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is no bad, nothing bad in that।
हम लोग भी कभी कभी विचार करते हैं, नहीं हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब देखिए एकदम क्लास खत्म होने के आगे ही आता है, सिर्फ प्रसाद लेने आते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग बहुत बैकग्राउंड में विचार करते हैं, लेकिन ये गलत विचार है हम लोगों का एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচারকদের একমাত্র উদ্দেশ্য কোন রকম ভেদাভেদের অপেক্ষা না করে প্রচার করে যাওয়া। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, কোন রকম ভেদাভেদের অপেক্ষা না করে कोई अगर ठीक प्रसाद ठीक नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद तो इस्कॉन बुलेट गेट के सामने रखा था कांच का डब्बा में, ठीक ना? उनको मालूम नहीं था कोई बुलेट खा के घर चला जाएगा, मैंने गुलाब जामुन खा के घर चला जाएगा, ऐसा कर सकता है ना? लेकिन फिर भी तो किया। क्यों? एक दिन चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, तीसरा दिन तो उनको भी विवेक में लगेगा ना, ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, पूरा साधु का बात सुन लेते हैं। तो इसको तो प्रभुपाद भी तो गरम गरम कचौरी सब्जी बनाया, खुद अपने हाथ से बनाया और सबको खिलाया, और खिलाते खिलाते लोग भक्त बन गए, तब पता ही नहीं चला लोगों को लोगों को पता ही नहीं चला। आया था लोग आता था कचौरी सब्जी खाने के लिए प्रभुपाद का। प्रभुपाद का भी बहुत कचौरी सब्जी फेमस बने, बहुत प्रिय था। प्रभुपाद जी का बचपन में एक नाम क्या था मालूम है? इनको मालूम है? अभयचरण कचौड़ी के ऊपर कुछ नाम था प्रभु जी, भूल दिमाग में नहीं आ रहा अभी। राजीव प्रभु कचुरी मुखो कोचुरी मुखी, हाँ यस, कृतिवाती जी लिखा है कोचुरी मुखी। हाँ, प्रभुपाद को कचौरी सब्जी बहुत पसंद था, और वहां भी जाकर प्रभुपाद ने कचौरी सब्जी बनाकर सबको भक्त लोग को, विदेशी भक्त लोग को खिलाया। हाँ, और इस्कन बुलेट्स जो कांच का डब्बा में मेन गेट के सामने रखे देते थे तो ये सब खिलाते खिलाते लोग भक्त बन गया, लोगों को पता ही नहीं चला कब भक्त बन गया। सत्य बात बोलिएगा, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ, आप में से कौन कौन प्रसाद की वजह से इस्कॉन में घुस गया? वेरी गुड, ज्यादा लोग है नहीं, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। मी प्रसाद एंड फेस्टिवल, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रभु जी इसीलिए जन्म स्थान में बर्थ प्लेस में डेली कचौड़ी बनता है प्रभुपाद जी के लिए। हाँ, अरे बोल, अच्छा ये मालूम नहीं। कचौड़ी मुखी, खस्ता कचौड़ी प्रभु जी, खस्ता कचौड़ी बनता है। अच्छा खस्ता कचौड़ी बनता है, ओके। हाँ, खस्ता कचौड़ी और ठेकुआ डेली बनता है मीठा। हम लोग भी जब पहले बार इसको जुहू में गए थे, राधा रासबिहारी मंदिर में, मैंने बताया था ना, वहाँ घुसने से ही सबको एक एक चम्मच हलवा देता था। वो क्या अमृत जैसा हलवा, पूरा घी में चुबाया हुआ हलवा, वो खाया, फिर हाथ धो के फिर वापस गया, 2-3 बार लाइन में लिया, फिर हलवा वाला पकड़ गया, तुमको अभी दिया ना? फिर तो लज्जा चलने और नहीं लिया, फिर वो हलवा खाने में ही जाते थे, और जाते जाते फिर जुड़ गए। वैसे है श्री प्रभुपाद का कृपा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये माता जी के प्रभुपाद क्लास में, मंडे क्लास में माता जी का जब प्रसंग आया था प्रभुपाद जी के लीलामृत में कचौड़ी सब्जी का, तो माता जी बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी को कचौड़ी सब्जी अपनी मम्मी के हाथ का इतना अच्छा लगता था कि जब उनकी माता बनाती थी तो सारे अधिकतर कचौड़ी अपने पॉकेट में डाल लेते थे खाने के लिए। ये सब वेरी गुड, यस। सो ओके, आप वेरी नाइस। बहुत भक्त और भी है जो प्रसाद खा के इस्कॉन में आ गया, वेरी नाइस। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे इस्कॉन इज अ किचन मूवमेंट। सुना है आपने ये वर्ड? इस्कॉन इज अ किचन मूवमेंट एंड पीप 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 इज अ चिकन मूवमेंट। प्रभुपाद जी ने ये भी बोला, आप नाम नहीं लेंगे, अभी ये यूट्यूब में डाला जाता है, तो इसीलिए पीप 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 का अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे पूर्ण नगर में तो देखिएगा पोल्ट्री फार्म भी है उन लोगों का, और उन लोग अपना जो ज्वाइन करता है यूथ बॉयज के लोगों को चिकन खिलाता है, अंडा खिलाता है, डीम 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 डीम, वेरी इंपॉर्टेंट शक्ति पावे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं इस्कॉन इज अ किचन मूवमेंट एंड पीप 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 इज अ चिकन मूवमेंट। हरे कृष्ण। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिके दिशे, अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिशे, दरिद्र पुरांगा खाए मालाकार हासे, दरिद्र कुड़ंगा खाए मालाकार हासे। वंडरफुल श्लोक, बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो आनंद नहीं ले पाइएगा। अप्राकृत मालाकार
श्री चैतन्य महाप्रभु अंजलि भरे हाथ पूरा मुट्ठी में भर के सबको कृष्ण प्रेम का फल दिया, हरिनाम का फल दिया सबको, সেই ফল বিতরণ করলেন। আর দরিদ্র ক্ষুধার্তরা যখন সেই ফল খেলেন তখন তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মালাকার হাসলেন। মালাকার হাসলেন মানে चैतन्य महाप्रभु हाँ, वो हंस- चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए। खुश होता है ना। सच बात बताइए, आप लोग कभी ऐसा भी होगा कि आपने किसी को भगवत गीता दिया था और 1 साल बाद उनका घर गया तो आपने देखा, जब घर में घुसा तो देखा वो भगवत गीता पढ़ रहा है। हाँ, या ऐसा भी हो गया है ना कि आपने किसी को इस्कॉन में जाने बोला था और 1 साल बाद जब आपने मिला तो आपने देखा कि वो बोला प्रभु जी थैंक यू, आपकी वजह से मैं एल्बर्ट रोड गया था और अभी मेरा दीक्षा भी हो गया। हुआ है ऐसा ना, बहुत लोगों का हुआ होगा, किसी ना किसी से किसी को जुड़वाया। सत्य बात बताइए, जब आपको पता चलता है कि व्यक्ति परमानेंट हो गया या मंदिर में गया, या सोचिए आपने बहुत प्रयास करके किसी तरह मायापुर में एक रूम बुकिंग कर दिया, प्लीज एक रूम बुकिंग कर, और हो भी गया और लोग मायापुर घूम के आपको बोला थैंक यू वेरी मच लाल साहब प्रभु, आप बहुत हेल्प किया हमको, बहुत अच्छा लगा मायापुर का, तो अच्छा आनंद लगता है ना। देयर इज अ फील गुड फैक्टर होता है ना, हो या नहीं होता है? प्रभु जी गोविंद का कृपा प्रभु से जी पूरे होता घर है। का 20 साल का लड़ाई खत्म हो गया प्रभु। हाँ, जब स्टार्टिंग में दीक्षा लिए थे या जाते थे मंदिर तो वही मैंने आनंद आता है। गाली देना, ये करना, बहुत कुछ करती थी। अभी खुद माला कर रही है, उसका दोनों बेटी यूथ क्लास कर रही है। एब्सोल्युटली। तो कितना आनंद होता है। तो ऐसे महाप्रभु जो बहुत आनंद होता है प्रभु। यस, महाप्रभु ने फल वितरण किया और वो सब फल खा रहा है, सब डिवोटी बन गया। कौन कौन? दरिद्रो क्षुधार्तुरा, जो इस भवसागर में पिटाई विटाई खा रहा था, उन लोग अभी हरिनाम फल खा रहे हैं, प्रेम फल। तो महाप्रभु देख के बहुत खुश हो गया, इसलिए महाप्रभु स्माइलिंग कर रहा है, आनंदित तो है, मालाकार हासलेन। মালাকার কহে শুনো বৃক্ষ পরিবার, মালাকার কহে শুনো বৃক্ষ পরিবার, মূল শাখা উপশাখা যতেক প্রকার, মূল শাখা উপশাখা যতেক প্রকার, অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্দ্রিয় কর্ম, অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্দ্রিয় কর্ম, খাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম। আবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ननद के यहाँ शादी में गए थे तो एक भगवत गीता लेकर गए थे। तो आज की डेट में उनकी बेटी जो है मेरी भांजी नहा धोकर पूजा करके डेली 2 श्लोक पढ़ती है। तो जब उसका पढ़ने का टाइम होता है ना तो उसके घर के मम्मी पापा भाई भौजाई सब शांत होकर सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के। जब 2 श्लोक हो जाता है भावार्थ कर लेगी तो फिर बंद करती है। डेली का नियम बन गया प्रभु जी। इतना सुनकर खुश हुए हम कि हाँ, बहुत अच्छा लगा प्रभु। वेरी गुड। आप हमसे बोली कि मामी मैं रोज 2 श्लोक करती हूँ तो मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे सब आके बैठ जाते हैं। कोई भी काम करते रहेंगे सारा काम छोड़ के सुन लेंगे फिर जाएंगे अपने अपने काम पर। जब मैं बंद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी सुनकर। जय जय। बीज रोपण हो गया माता जी, उस घर में पूरा डीप बीज रोपण हो गया। हाँ माता जी, सारे 2 पोती पोता है, बेटा बहू 2 ठो है, 6-7 लोग सुनते हैं बैठकर। और गोद में बच्चा लेकर सुनती है बहू उनकी डेली। तो यहाँ लिखा है कविराज गोस्वामी बोला है भक्ति वृक्षের শাখা উপশাখাদের সম্বোধন করে মালাকার বললেন। मालाकार महाप्रभु सबको बोल रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। महाप्रभु आपको भी बोल रहा है, हमको भी बोल रहा है, सबको बोल रहा है। क्या बोल रहा है महाप्रभु? যেহেতু ভক্তি বৃক্ষ অলৌকিক তাই তার প্রতিটি অঙ্গ অন্য সমস্ত অঙ্গ কর্ম সম্পাদন করতে পারে, মানে सर्वेंद्रिय वृत्तिमांती अंगानी ऐसा समझ में आ रहा है। सर्व अंग दूसरे अंग का भी काम कर सकता है क्योंकि পুরাই অলৌকিক है वृक्ष। বৃক্ষ যদি স্থাবর তবুও তা জঙ্গমের ধর্ম অবলম্বন করেছে। समझ नहीं आया? तात्पर्य पढ़ते हैं। জড়জগতে দেখা যায় যে বৃক্ষ একটি জায়গা দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু চিৎজগতের বৃক্ষ এক জায়গা থেকে আরো এক জায়গায় যেতে পারে। তাই চিৎজগতের সবকিছুকে বলা হয় অলৌকিক বা অপ্রাকৃত। এই বৃক্ষের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা সর্বভাবে ক্রিয়া করতে পারে। तो 2, एक तो क्या था
ट्रेवलिंग ट्री। दूसरा क्या था? सब कुछ कर सकता है। জড়জগতে বৃক্ষের মূল মাটির নিচে প্রবিষ্ট হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু জীবজগতের বৃক্ষের উপর অংশের ডালপালা, ফুল ও পাতা মূলেরই মতো ক্রিয়া করতে পারে। हरि बोल। तो जड़ जगत में क्या देखते हैं? जो वृक्ष है उसका जो मूल माटी नीचे प्रविष्ट है, खाद्य संग्रह करे। मतलब जो जड़ है ना, जो मेन स्कंद है, वही नीचे से खाना पीना लाता है और सबको डाल देता है, भेज देता है। हम लोग उसीलिए पानी नीचे डालते हैं ना। लेकिन चीज जगत का वृक्ष वैसा नहीं है। चीज जगत का वृक्ष में डाल, पत्ता, फल वो भी काम कर सकता है। ऐसा मतलब कोई भी इंटरचेंजेबल, कोई भी कुछ कर सकता है। तो महाप्रभु जो प्रचार किया है, ऐसा मत सोचिए कि महाप्रभु भी प्रचार कर सकते, भाई हम लोग तो नहीं। सब में वो संचारित है, सब में वो पावर दिया गया है। इस भक्तिलता, भक्ति वृक्ष में कोई भी फल, कोई भी पत्ता, कोई भी डाली, कोई भी सब डाली समझे ना, डाली का डाली, उसमें भी उतना ही शक्ति है जितना स्कंद में है। हरि बोल। ये अलौकिक है, उसीलिए महाप्रभु इस वृक्ष को अलौकिक बोला है। सबको समझ में आ रहा है? और भी एक चीज बताया गया है इस वृक्ष के बारे में। ये वृक्ष जैसे एक जगह खड़ा रहता है, जड़ जगत का वृक्ष, ये वृक्ष क्या करता है? एक जगह से दूसरा जगह भी जा सकता है। इसका क्या अर्थ ले, यहाँ प्रभुपाद जी ज्यादा बताया नहीं, लेकिन ऐसे ले सकता है कि देखिए प्रभुपाद जी कहाँ महात्मा गांधी रोड में जन्म लिया, टॉलीगंज में, फिर बड़ा हुआ महात्मा गांधी रोड में, फिर पूरा विश्व में प्रचार किया। इतना बार ट्रैवल करते थे प्रभुपाद जी। आई थिंक कितना बार सर्कम एम्बुलेट किया? 7 बार ना 6 बार विश्व को सर्कम एम्बुलेट परिक्रमा किया। प्रचार करते, परिक्रमा मैंने प्रचार करते करते फ्लाइट में हर एक जगह जाके प्रचार टू गुड। तो ट्रैवलिंग ट्री हो गया। ए वृक्षेर अंग হয় সব সচেতন, এই বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন, বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন, বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন। একলা মালাকার আমি কাহা কাহা যাব, একলা মালাকার আমি কাহা কাহা যাব, একলা বা কত ফল পারিয়া বিলাবো। একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব। तो महाप्रभु अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है? किसको बोल रहा है? आपको और हमको, सबको बोल रहा है। ध्यान से सुनिए महाप्रभु क्या बोल रहा है। এই বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গ চিন্ময়, সত্তা বিশিষ্ট এবং সেগুলি বর্ধিত হয়ে সমস্ত জগৎ জুড়ে বিস্তৃত হলো। ओके, এই বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গ চিন্ময়, সত্তা বিশিষ্ট। हिंदी में क्या लिखा है इसका? सेंटेंस पढ़िए, अनुवाद। इस वृक्ष के सारे अंग आध्यात्मिक रूप से सचेतन हैं और वे ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्यों-त्यों सारे जगत में फैल जाते हैं। ओके, तो जो भी इस वृक्ष से जुड़ गया है, इस भक्ति इस्कॉन से जुड़ गया है, सब क्या है? चिन्मय सत्ता विशिष्ट, सब स्पिरिचुअल हो गया है। और महाप्रभु ये भी बता रहे हैं, আমি হচ্ছে একমাত্র মালাকার, আমি अकेला गार्डनर हूँ। একা একা আমি কত জায়গায় খেতে পারি, যেতে পারি, কত फली पेरे बिलाती पारी, कि मैं कितना को डिवोटी बनाऊंगा। आप लोग भी बनाओ। महाप्रभु यही बोलना चाह रहे, ठीक है? कितना मैं ट्रैवल करूंगा? मैं साउथ इंडिया ट्रैवल किया, फिर वेस्ट इंडिया में गया, पंढरपुर में गया, फिर जगन्नाथपुरी में गया, भक्त बनाया, फिर वृंदावन गया, रास्ते में झारखंड में टाइगर और इन लोग को भी भक्त बनाया। बहुत हो गया, अभी तुम लोग बनाओ। तात्पर्य এখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিত করেছেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের বিতরণের কার্য সমবেতভাবে সম্পাদন করতে হবে। সমবেতভাবে মানে কালেক্টিভলি, सबको मिलके करना चाहिए। যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি অনুশোচনা করছেন, আমি একলা কিভাবে এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করব। इसीलिए यादव का दीक्षा के समय कुछ गुरु महाराज लोग ये भी प्रतिज्ञा ले लेता है शिष्य से, बोलो तुम चार नियम पालन करोगे ना, चालन 16 माला जप करोगे ना करोगे। महाप्रभु और अपने गुरु महाराज का ये आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन में योगदान करोगे और सेवा करोगे। बहुत लोग ऐसे, बहुत महाराज लोग ऐसे प्रॉमिस लेते हैं ना, একা একা কত ফলই বা আমি পারবো, আর সমস্ত জগৎ জুড়ে কিভাবে বা তা বিতরণ করব।
এর থেকে বোঝা যায় যে স্থান কাল ও পাত্রের বিচার না করে সকল শ্রেণীর ভক্তকে একত্র হয়ে হরে कृष्ण মহামন্ত্র वितरण करते হবে। आप में से तो अधिकांश भक्त जो इधर जुड़े हुए हैं सब दीक्षित है, हरिनाम दीक्षा तो हो ही गया है। तो आप में से कौन कौन ये प्रतिज्ञा करवाया था महाराज दीक्षा के समय? किसको किसको याद है? मेरे को तो याद है। जो लोग हमारे नहीं, हम लोग को तो नहीं कराया था, हम बच गए, हम नहीं करने से भी चले गए। हमको नहीं बुलाया। अच्छा गुड, रुकिए मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। डरिए मत, फंसिएगा नहीं। फंस जाएगा। ओके थैंक यू, वेरी नाइस। ठीक है, तो गुरु महाराज ने प्रॉमिस कराया है प्रचार करने के लिए, ये आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, तो महाप्रभु वही बोल रहे हैं, हम कितना करें अभी? একলা উঠাইয়া দিতে হয় পরিশ্রম, একলা উঠাইয়া দিতে হয় পরিশ্রম, কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম, কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম। অতএব আমি আজ্ঞা দিলু সবাকারে, অতএব আমি আজ্ঞা দিলু সবাকারে, তাহা তাহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে। যাহা তাহা প্রেম ফল দেহ জাগে তাগে। টু গুড টু গুড। মহাপ্রভু বললেন একা একা সেই ফলগুলি পেরে বিতরণ করা অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ কাজ, তার ফলে কেউ সেগুলি পায় কেউ সেগুলি পায় না বলেই আমার মনে হয়। और हालांकि महाप्रभु ने सबको कृष्ण भक्त बना दिया था उनके टाइम में, लेकिन लगता है ना कि किसी को प्रचार किया किसी को प्रचार नहीं कर पाया। सत्य बात बोली, ऐसे कभी आप लोग को अफसोस हुआ? हो सकता है कि आप बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और आपको लगा कि आपके जो पास में बैठे हुए हैं इन लोग का हरिनाम दे, इन लोग को भी थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र हुआ, लेकिन आप अपना जप खत्म नहीं हुआ तो जप में ज्यादा ध्यान दिया और देते देते स्टेशन आ गया, आप उतर गए तो मन भी बुरा लगा। इन लोग को डिवोटी बनाना चाहिए, एटलीस्ट बोलना चाहिए था, एटलीस्ट वो हरे कृष्ण कार्ड बोलना देना चाहिए था। ऐसा हुआ ना बहुत बार कि कभी लगा कि इन लोग को करना चाहिए इन लोग को, लेकिन हम कर नहीं पाए। या ऐसा हुआ ना? जी प्रभु जी। तो वैसे महाप्रभु को लगता है कि अरे हमने प्रचार किया, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग नहीं पाए हरिनाम, उस समय उस रास्ते में उपस्थित नहीं थे। प्रभु क्यों ऐसे होता है? क्यों ऐसा होता है? उस समय रास्ते में नहीं थे, क्यों? भाग्य में नहीं था, सुकृति नहीं था, इसलिए महाप्रभु जब दक्षिण भारत गया, हो सकता है वो उस रास्ते में नहीं था, उसका गांव वाले कोई था नहीं, तो इसलिए उसको ना मिला ना कोई आकर गांव में वितरण किया, हो ही सकता है। ऐसे महाप्रभु को लग रहा है, ठीक है। তাই इसलिए महाप्रभु आगे बता रहे हैं কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত গ্রহণ করে সর্বত্র তা বিতরণ করার জন্য আমি এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আদেশ দিলাম। हरि बोल। ठीक है, जिन लोग को अगर गुरु महाराज भी भूल गया बोलने के लिए या नहीं बोला, तो महाप्रभु साक्षात भगवान आदेश दे रहे हैं। तो सभी का दायित्व है ये हरिनाम का फल प्रचार कर वितरण करना। एवरीबॉडी नो कृष्ण बोल रहे भगवान। तात्पर्य এই সম্পর্কে ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি, হরি নাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি, ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া, সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া। মায়া অন্ধকার নাশ করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন। মায়ার প্রভাবে
এই জড় জগতে সকলেই মনে করছে যে সে জড় পদার্থ জাত এবং তাই জড়দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার নানা রকম কর্তব্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জড়দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, সেটি হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময় হওয়ার এক চিন্ময় প্রয়োজন তার রয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করার ফলে সে কখনো নিজেকে একটি মানুষ, কখনো একটি পশু, কখনো একটি বৃক্ষ, কখনো একটি মৎস্য, কখনো একটি দেবতা আদি বলে মনে করছে। এভাবেই দেহের পরিবর্তনের ফলে সে বিভিন্ন ধরনের চেতনা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং তার ফলে নিরন্তর এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হয়ে সে জড়জগতের বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তা ভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সে অতীত অথবা ভবিষ্যতের কথা বিচার না করে ক্ষণস্থায়ী বর্তমান জীবনটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছে। এই মায়া নাশ করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন রূপী মহৌষধ নিয়ে এসেছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করার জন্য এবং বিতরণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করছেন। যিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকৃত অনুগামী, তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে অবশ্যই তার নির্দেশ পালন করবেন এবং তার কাছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ভিক্ষা করবেন। কেউ যদি ভগবানের কাছে থেকে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ভিক্ষার করার সৌভাগ্য অর্জন করে তাহলে তার জীবন সার্থক হয়। একলা মালা কারো আমি কত ফল খাবো, একলা মালা কানে আমি কত ফল খাবো, না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব, না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব। আমি একলা মালাকার, এই ফল যদি আমি বিতরণ না করি তাহলে আমি সেইগুলি নিয়ে কি করব? আমি একলা কত फल खाबो? सोचिए आपका गार्डन में, ठीक है सत्या माता जी, सोचिए आपका गार्डन में प्यारा गाछ है, प्यारा गाछ, तो क्या बोलते हैं आप लोग? अमरूद, ठीक है, या पेरू, पेरू, पेरू वृक्ष है, क्या बोलते हैं हिंदी में? अमरूद बोलते। अच्छा, तो अमरूद वृक्ष है और सोचिए कितना खा सकते, आप कितना अमरूद खा सकते हैं एक दिन में? सोचिए आप 20 तो खा सकते हैं अमरूद, लेकिन नहीं 20 तो नहीं, जितना भी 2 तो खा सकते हैं, लेकिन बाकी क्या करेंगे फिर? डेली सोचिए 50-60 अमरूद निकल रहे, इतना बड़ा वृक्ष है, तो वही बांट देंगे। पक्का तो? हाँ। अच्छा, बेच देंगे बोले माता जी, ठीक है। तो यहाँ बेच देंगे नहीं बोले, बांट देंगे। अच्छा, तो यहाँ महाप्रभु बोल रहे हैं कि हम कितना खाएंगे, क्योंकि उनका एक भी उद्देश्य तो ये भी था ना, खाने, प्रेम फल कैसा होता है वो खाने के लिए भी अवतरण हुआ था ना, कि श्रीमती राधा ने जो हमारे कृष्ण प्रेम फल आस्वादन कर रहे हैं ये कैसा है, ये चखना पड़ेगा। वो भी तो एक उद्देश्य था ना महाप्रभु का अवतरण के पीछे, तो ठीक है चख लिया, लेकिन बांट भी दिया बाकी, यही महाप्रभु बोलना चाह रहे हैं। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবত ভক্তির এত ফল উৎপাদন করলেন যে সারা পৃথিবী জুড়ে যদি সেগুলি বিতরণ না করা হয় তাহলে তিনি একা সেই সমস্ত ফল কিভাবে আস্বাদন করবেন? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূল কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারানীর প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা এবং আস্বাদন করা। ভক্তি বৃক্ষের এই ফল অসংখ্য এবং তাই তিনি নির্বিচারে সকলকে তা বিতরণ করতে চেয়েছিলেন। অতএব শ্রী রূপ গোস্বামী লিখেছেন, कैसा होगा? यहाँ पर बोलिए, बोले प्रभु ये क्या ट्यून? हाँ बोलिए। हाँ, अनर्पित चिरात करुणयावर्तेन कलो समर्पयेतुम् उन्नतो जल
रसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुगट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। ভেরি নাইস। ভগবানের বহু অবতার রয়েছেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো এত উদার, করুণাময় ও মহামাদান্য অবতার আর কেউ নেই। কেননা তিনি ভগবত ভক্তির সর্বোত্তম উজ্জ্বল রস রাধা কৃষ্ণের মাধুর্য প্রেম দান করেছেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ কামনা করছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর সমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে বিরাজ করুন, কেননা তাহলে তারা শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মহিমা অনুভব করতে পারবেন এবং আস্বাদনও করতে পারবেন। হরি বল। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি। বলন হরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि हरि। हरि हरि।